Hello everyone, welcome to Apna Urjab channel. So now in this video I will discuss that how you can prepare for Railtel exam. As you already know that exam date is 17th of February and today admit card also out. Okay, so you can download your admit card. The link I will give in the comment section. I will also show you that how you can download your admit card. So the main thing is that now last hardly 10 days we have, and in this 10 days how you can prepare, what are the important do's and don'ts, everything in detail we will discuss. So I want that with patience for next 25 to 30 minutes. You should watch this whole video if you are seriously preparing for Railtel, which is the Meeratna PSU in Government of India. So now how to download your admit card? When you will click on the link which I will give in the comment section, this page will open. Okay, here just enter your user ID, password, enter the captcha, click on login button, and then you can download your admit card. Next thing is our mock test schedule. So 3 mock tests will be there, which is very important for your final preparation. Okay, those who are already in MSP, Master Step Pack, who are preparing for Railtel, you will combine it with our blockwise strategy. Okay, so mock test 1 is already live on 1st of February. Mock test 2 live today at 7th February, and mock test 3 will get live on 12th of February. As you know that consistently I am giving selections in PSU and government job, and last year also in Railtel we had great selections, and this time also definitely I am confident that I will get a good number of selections in Railtel for assistant manager and deputy manager. The main thing is that whatever techniques or whatever things I will discuss in this video, just try to absorb those things and try to apply and try to implement for this 10 days. Definitely you will get success. Okay, so how you can attempt our mock test? Just join Master Step Pack, which is definitely for CBT plus interview, because you know that I will get selection after preparing for CBT plus interview. Okay, it is not like that for CBT only, it is there. Okay, so you can join for CBT plus interview, and if you are preparing for other exams also, then definitely it will help you for preparation. Okay, in the comment section you will get the link, so please join Master Step Pack of your own branch, so in future you will get advantage with that. Okay, so when you will join Master Step Pack, okay, here you can see, just click on content and then you can go for Railtel DM and AM recruitment 2023. Okay, just click on this folder. When you will get sheet from team after registration, okay, you can watch this video for blockwise strategy. You will get idea that what is blockwise strategy and everything, and when our call will get scheduled, I will discuss how to complete the sheet for now. Okay, then directly go to mock test, and here you can see 2 mock tests are there. Just properly give those mock tests and when you will attempt those mock tests at your given time. तो जो भी admit card पे time लिखा है, whatever time is written on your admit card, at that specific time only practice these 3 mock tests. Okay, it is most important. Yeah, so now main thing is that we have 10 days. Okay, what are things you can do and you should not? Before that, let me discuss few important points. So less competition is there for your exam. As you know that this year Railtel want only experienced people. Okay, last year it was for fresher when we have great selections, but this time it is for experienced people only. So the main thing is that 90% people are there who are working already somewhere, right? They have experience, obviously they are working, and most of this 90% I can say they don't have that touch for your preparation. Means they prepare a long ago and now they are just preparing from scratch when this recruitment came. Okay, and you know that hardly we got 3 months for your this recruitment. Okay, December, January, February. So less competition is there, so no need to worry. Okay, whatever preparation level you are currently, just give that properly. Okay, and it is not like that ki if you didn't complete the whole syllabus you will not get selection or you will not get interview call. It is not like that. Okay, last year also I have given the selection. You can read testimonials also of the student in your MSP. Testimonials are given. Okay, you can read that. So main thing is that just be focused and have confidence for these 10 days, right? The next thing, that negative marking is not there. Definitely it will reduce your pressure, and I always say that whenever there is no negative marking, 30% pressure will get down in your exam hall. Okay, so main thing is that just remember this thing, very important. And the last thing, that cutoff will go less for sure. Why? Because everyone is working. Okay, lots of people are there, those who started preparation or means those who didn't have that hold on preparation. So because of which cutoff will go definitely low for this recruitment. Okay, it is not like last year cutoff, because last year it was for freshers, those who are continuously preparing for exams. But this year the scenario is completely changed. Okay, so this is the important thing you should note down. So in a nutshell, everything or anything can happen. So do not give up and go confidently for exam, for CBT. Okay, now many of you are working, obviously, right? So what I want, if possible, okay, again I am highlighting, if possible, आप leave ले लो.
ठीक है, छुट्टी ले लो, यू कैन टेक लीव एटलीस्ट फॉर 10 days, और इफ नॉट पॉसिबल फॉर 10 days एटलीस्ट फॉर 5 days और 3 days एटलीस्ट लो, कुछ ना कुछ लो. ओके, इट इज नॉट लाइक यू विल जस्ट प्रिपेयर टिल योर एग्जाम डेट एंड टुमारो इज एग्जाम, यू विल डायरेक्टली गो टू द एग्जाम. नहीं, पूरा. सो फ्रॉम दिस जॉब इन्वायरमेंट यू नीड टू कंप्लीटली स्विच टू प्रिपरेशन मोड, at least for the 5 days, at least for 3 days, at least for 7 days. I don't want that in your mind pressure should be there कि okay बॉस को ये काम करना है, अपना टारगेट कंप्लीट करना है. ओके, बहुत सारी चीज़ें, किसी ने ये बोल दिया, कलीग ने कुछ कर दिया. सो आई वॉन्ट कि फ्रॉम दैट chaos you should free yourself and you should put your 100% in your preparation. Then only definitely you will get success and more marks as compared to other candidate. ठीक है, तो स्ट्रिक्टली आई विल रिकमेंड दैट टेक अ लीव एटलीस्ट फॉर 10 days और मिनिमम 5 days एटलीस्ट. लीव मिलेगा नहीं, ले लो, ठीक है, सिक लीव डाल दो, पता है आपको टेक्निक्स, राइट. सो दिस बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जब भी मैंने BIRC का साइंटिस्ट एग्जाम क्रैक किया था, मेन थिंग इज दैट आई हैड टेकन लीव फॉर 15 days. ऑफिस से कॉल आते थे, मैं बोलता था मैं बाहर हूँ, ओके, बिकॉज ऑफ समवंस डेथ, लाइक मैंने बोल दिया, एंड 15 days के लिए मैंने प्रिपरेशन किया था. So that's why I know the importance of these last 10 to 15 days. Okay, you should completely focus on your preparation, not for job things. Now final 10 days are remaining. So the first thing you will do is stop your preparation. Okay, now whatever content you consume or you prepare for the exam in the last 2 to 3 months, उतना आपने किया है, अभी उसका ही अब तो रिवीजन करना है. ज़्यादा नया चीज़ें अब करने को मत करो. हाँ, अभी जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक टेस्ट में जो भी मैंने कंसेप्ट इंक्लूड किए हैं, वॉट एवर कंसेप्ट आई हैव इंक्लूडेड इन अवर मॉक टेस्ट, दैट डेफिनेटली यू शुड डू फ्रॉम अवर मॉक टेस्ट ओनली. ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करो, बट एक्स्ट्रा कुछ करने को मत जाओ अभी. ठीक है, इट इज़ नॉट टाइम टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. सेकेंड, रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, स्टॉप ओवर थिंकिंग, द थर्ड पॉइंट. इट इज़ नॉट लाइक दैट यू विल नॉट मेक. ओके, अगर आपको लग रहा होगा बहुत सारे, क्योंकि स्टूडेंट मतलब कंपटीशन में नहीं है, ओके, दे आर नॉट इन टच विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सो लॉन्ग, दे आर प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर रेलटेल. सो कितना भी आपका प्रिपरेशन हुआ हो अभी तक, उस पर कॉन्फिडेंट रहो एंड अच्छे से प्रॉपरली माइंड काम रख के आप एग्जाम को जाओ. ठीक है, ओवर थिंक नहीं करना है, कट ऑफ कितना जाएगा, हाउ आई विल गेट टू इंटरव्यू कॉल, वेदर आई विल गेट सिलेक्शन इन रेलटेल और नॉट. ओके, नथिंग टू डू विद दिस थिंग, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड रिविजन, मेन थिंग. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस 10 days नाउ, गिव मॉक टेस्ट. अभी बहुत सारे, ऑल ऑफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो दैट टच यू लॉस्ट, राइट. सो मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं बोलता अपना ही दो, किसी भी प्लेटफॉर्म को दो, बट मॉक टेस्ट दो. ओके, एंड हाँ, मेक श्योर कि मॉक टेस्ट आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म को दोगे, जो मतलब अभी कंसिस्टेंट सिलेक्शन दे रहा है, जैसे अपना है सिलेक्शन, राइट. उसके अलावा मतलब कोई भी एक प्लेटफॉर्म जिसके सिलेक्शन से, तो उसकी आप मॉक टेस्ट चूज करो, बिकॉज आजकल कोई भी मॉक टेस्ट बना देता है और कुछ भी दे देता है. ठीक है, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट. सो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो आपका माइंड है, ठीक है, वो कंप्लीटली उसका ट्रेनिंग हो जाएगा, दैट योर माइंड विल गेट ट्रेन फॉर दैट एग्जाम सिनेरियो. जो एग्जाम हॉल में जाके आप एग्जाम देने वाले हो, 2 hours यू विल सिट कंटिन्यूसली फॉर योर एग्जाम, यू विल पुट ऑल ऑफ योर फोकस अटेंशन फॉर योर 2 hours. ठीक है, तो वो प्रैक्टिस होगा, एंड फॉर दैट प्रैक्टिस गिव मॉक टेस्ट, विच इज मोस्ट एसेंशियल फॉर यू. ठीक है, एंड स्पेशली यू आर नॉट इन प्रिपरेशन मोड, सो डेफिनेटली मॉक टेस्ट देना ही है कंपलसरी. ठीक है, अभी मॉक टेस्ट देना है तो कैसे देना है, ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया कि एज पर योर एग्जाम टाइम, जो भी आपका एडमिट कार्ड पे एग्जाम टाइम दिखेगा, सपोज इट इज लाइक 10 AM पे आपका एग्जाम है. ठीक है, सो एट 10 AM ओनली यू विल स्टार्ट योर मॉक टेस्ट. जस्ट सिट एट क्वाइट प्लेस. अगर आप घर पे हो तो घर पे बोल दो कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 hours डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम गिविंग टेस्ट सीरियसली. ठीक है, एंड मेन थिंग सीरियसली देना है. कंसिडर योर मॉक टेस्ट एज अ रियल एग्जाम. ओके, एज अ रियल एग्जाम ही उसको पकड़ के मानना है. ठीक है, अभी इस पर गलती क्या करते हैं एस्पायरेंट, रियल एग्जाम मान के अगर देते हैं, ओके, और मार्क्स अगर कम आए तो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, और इस डीमोटिवेशन के कारण देयर विल बी 2 possible थिंग्स. फर्स्ट, आइदर दे विल लीव देयर प्रिपरेशन, एंड सेकेंड, दे विल लीव एग्जाम डायरेक्टली, एग्जाम में ही जाएंगे नहीं. तो ये आपको नहीं करना है. द पर्पज ऑफ मॉक टेस्ट is to analyze your mistakes, okay, is to give confidence, is to train your mind to sit for continuously 2 hours and to brainstorm and to recollect the concepts. तो ये पर्पस होता है मॉक टेस्ट का, ना कि आप रैंक देखो, कट ऑफ देखो, बिल्कुल भी देखना नहीं है. रैंक कितना भी रैंक हो देखना नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट वॉट योर रैंक और माट योर मार्क्स यू आर गेटिंग इन मॉक टेस्ट, दैट सेम विल गेट रिफ्लेक्ट इन योर ओरिजिनल पेपर, बिकॉज ऑब्वियसली मॉक टेस्ट किसी का भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट नहीं देते. Okay, not all 100% students are giving mock test from any other platform.
देयर मे बी 10%, 20%, 30% स्टूडेंट गिव द मॉक टेस्ट, ठीक है. सो इट यू कांट जज कि हाँ विद दिस रैंक और विद दिस मार्क्स whether I will get selection or whether I will not. Do not worry about that, ठीक है. The next point is most important that now I can't comment on other mock tests, but our अपना गवर्नमेंट जो mock test acts as a question bank, okay, because you can see the result and testimonial. So those who are already in MSP, make sure that you will revise all the concepts that I will include in your mock test, okay. Most important thing is there, detailed solution is there for each question, so just go for that, right. The next thing that work on weakness. After giving mock test you will get idea. For example, you will get, okay, in theory I am strong and in numerical I am weak, I can't solve the problems. So this first point you are getting, I am just giving you example that how to think. So in theory I am strong because suppose out of 100 there are 40 theory questions, out of that 20 theory got right, okay, and suppose 16 numericals are there, out of that only 10 numericals you got right. So if you calculate the percentage, you can see that almost 50% marks you are getting in theoretical, but here you are getting 33 marks, 30%, right. So main thing is that focus on this thing and this part, whether I am strong in theoretical or numerical or whatever concepts you will get after analysis. So it's most important, after giving 2-hour mock test, take a rest of 30 to 1 hour, 30 minutes, not 30 hour, and then after that you will sit and you will analyze. It is not like just you are giving the mock test. Main thing is this, you will analyze the mock test, and it is the general rule that you can take 2 times, okay, whatever your exam time. So your exam time is 2 hours, then take 4 hours to properly analyze the mock test, okay. So from that you will get lots of things like this, okay. Most important thing now, one of the mistake lots of aspirant do these days, people are lazy, so directly they will open the application on mobile and they will give mock test on mobile itself, okay. Do not do this at all, because it is most important to give mock test as per your real exam only. Real exam किस पे होने वाला है, मोबाइल पे नहीं होने वाला है. It will be not on mobile, it will be on computer. So main thing is that आपको वेब पे देना है, कंप्यूटर पे एग्जाम देना है. अपना गवर्नमेंट जॉब के जो मॉक टेस्ट है, ये 3 मैंने दिखाया आपको, वो भी आपको वेब पे ही देना है कंपलसरी, सो दैट आपका प्रॉपर प्रैक्टिस होगा और वैसा ही आपको इन्वायरमेंट मिलेगा जैसा आपको रियल टेल एग्जाम का मिलने वाला है, ठीक है. सो आई होप टिल नाउ यू गॉट कि मॉक टेस्ट क्या है, कैसे देना है और क्या उसका इंपॉर्टेंस है, राइट. नाउ वी विल मूव टू अवर स्ट्रैटेजी फॉर दिस नेक्स्ट 10 डेज. तो एज यू ऑलरेडी नो द एग्जाम पैटर्न ऑफ रेल टेल, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है. 150 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, 100 टेक्निकल के एंड 50 जो है नॉन टेक का पार्ट होने वाला है, राइट. सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा द मोस्ट मेजर पार्ट, दैट इज योर टेक्निकल पार्ट. द सिलेबस ऑफ टेक्निकल इज सेम फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर, दोनों के लिए सिलेबस जो है वो सेम है, ठीक है. तो अभी क्या करना है, ऑब्वियसली रिविजन, राइट. न्यू कंसेप्ट को और न्यू थियोरेटिकल कुछ भी हो टॉपिक और सब्जेक्ट को टच बिल्कुल भी नहीं करना है, वो टाइम गया, ओके. जस्ट फोकस ऑन रिविजन नाउ. नेक्स्ट थिंग दैट फॉर अवर MSP एस्पिरेंट, फोकस ऑन ब्लॉक एंड मॉक. वॉट एवर गाइडलाइंस और वॉट एवर रोड मैप यू आर गेटिंग इन अवर शीट, ब्लॉक वाइज शीट, उसको ही फॉलो करना है, ठीक है. बाकी कुछ भी अपना दिमाग लगाना नहीं है. जस्ट हाँ, मेन क्या है, अपने डेली रूटीन में उसको आपको ट्राई करना है कि वॉट एवर टारगेट्स आई एम गिविंग इन योर ब्लॉक वाइज शीट यू विल कंप्लीट दोज, ठीक है. और इसके साथ आपको मॉक टेस्ट कंबाइन करना है. जो MSP के स्टूडेंट नहीं है, आपको मॉक टेस्ट देना है अच्छे से और मॉक टेस्ट रिवीजन करना है, किसी प्लेटफॉर्म को आप दो, ठीक है. नेक्स्ट, फोकस मोर ऑन थियोरेटिकल थिंग्स. नाउ सी इन रेलटेल बेसिकली द मेजरली दे विल फोकस ऑन थ्योरी, ओके. इट इज नॉट न्यूमेरिकल, सो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रहेगा. तो MSP में ऑलरेडी आपके पास नोट्स है, ई बुक है, बाद में जो मॉक टेस्ट है उसमें बहुत सारे थ्योरी है, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में बहुत सारे थ्योरी आपने कवर की है ऑलरेडी, राइट. सो मतलब हर एक चीज़ ऑलरेडी हमने कवर की है, अभी जस्ट आपको रिवाइज करना है, okay. Just focus on revision part. Now suppose those who want to join MSP now 10 days before, okay, they may think कि whether I will complete block wise strategy or not. So अपना कॉल शेड्यूल होता है, जैसे आप MSP ज्वाइन करते हो रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन योर करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन. तो इन दैट आई विल पर्सनली गाइड यू दैट हाउ यू कैन यूज दिस शीट एंड मॉक टेस्ट कंबाइनली, ठीक है. तो वो टेंशन मत लो. मेन थिंग इज दैट कि सीरियस आपको होना है रेलटेल के लिए, ठीक है. Now the high weightage, from which subject you can expect the high weightage, ठीक है. So see few things, definitely whole syllabus or whatever syllabus you complete so far, that is most important, but in that also super important things are there, right. तो first subject जो है वो है communication, second subject जो है वो है signals and systems, and the third one is your EMFT, that is electromagnetic theory, ठीक है. and the last one is digital electronics. So now out of whatever subject they have given, I guess 8 subjects are there, right. ये जो 4 है
इनके 60% क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके 60%, ये बढ़ भी सकता है, कम हुआ तो अप टू 55 इट विल कम, इट विल यस ओके, बस उससे कम बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप मान के चलो कि 60% क्वेश्चन आपको आने वाले, मतलब आउट ऑफ 100 जो टोटल क्वेश्चन है आपके, यू विल गेट टोटल 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 फ्रॉम दिस 4 ओनली। तो अगर आपने इनके जो कंसेप्ट है ओके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए, इफ यू स्ट्रॉन्ग दिस कंसेप्ट वॉट एवर कंसेप्ट आर देयर इन योर 4 सब्जेक्ट्स, देन यू विल गेट अ गुड स्कोर इन टेक्निकल। एंड अपने को मेन ओवरऑल कट ऑफ और ओवरऑल स्कोर हाई चाहिए, तो टेक्निकल का स्कोर हाई होना ही पड़ेगा, बिकॉज नॉन टेक्निकल में देर इज लिटिल बिट अनसर्टेनिटी इज देयर, ठीक है। टेक्निकली इन टेक्निकल यू कैन स्कोर, okay, so main thing is that focus first more on the subject, try to revise and practice lots of questions. Now in our blockwise sheet already I cover variety of questions of these 4 subject, ठीक है, you will from that theory numerical सब cover किया है already, right? तो ये आप कर सकते हो। अभी सपोज आपने अगर ज्वाइन किया MSP तो ब्लॉकवाइज शीट के एटलीस्ट ये 4 सब चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है फर्स्ट देना है आपको, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट की पॉइंट आपको बता दिया। सेकंड, देन यू कैन जस्ट टेक द रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स एंड यू कैन प्रिपेयर, ओके, आउट ऑफ विच यू विल गेट 40%, ठीक है। नेक्स्ट यू विल गेट एप्टी रीजनिंग। सो नाउ फ्रॉम एप्टी रीजनिंग आउट ऑफ 50 जो नॉन टेक्निकल पार्ट है आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से यू कैन एक्सपेक्ट 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टी रीजनिंग, ठीक है। कैसे भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक 13 फॉर एप्टी देन 12 फॉर रीजनिंग, ठीक है, 10 फॉर एप्टी देन 15 फॉर रीजनिंग, एनी डिस्ट्रीब्यूशन यू मे गेट, दैट्स व्हाई आई कंबाइन एप्टी एंड रीजनिंग, ठीक है। तो एप्टी एंड रीजनिंग में अभी जस्ट प्रैक्टिस ही करना है आपको, बाकी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। टेलीग्राम पीडीएफ अपने डेली आ रहे हैं, वो टेलीग्राम पीडीएफ प्रैक्टिस करते रहो, उधर जो लिखा है #रेलटेल, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है, और डेली जो टेलीग्राम पीडीएफ है आप सॉल्व करो। बाकी जो एमएसपी पब्लिक है टेलीग्राम पीडीएफ ऑप्शनल है आपके लिए, ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी मैंने दिया है, वो करना है, एंड मॉक टेस्ट के क्वेश्चन तो डेफिनेटली करने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही आपको एप्टी रीजनिंग के लिए करना है, ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ओके। देन इंग्लिश जो है उसमें से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 15 क्वेश्चंस और 10 to 15 क्वेश्चंस और 20 to 12 क्वेश्चंस इंग्लिश के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेन इंग्लिश पे जो फोकस रहेगा वो है रिवीजन, एंड रिवीजन किसका, तो ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस आपका आएंगे, लगभग आप मान के चलो 60-70% ग्रामर के आएंगे, तो ग्रामर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। ग्रामर स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, तो एमएसपी में ऑलरेडी मैंने ई बुक दिया है आपको इंग्लिश का, वो आप उससे क्विकली ऑल द रूल्स यू कैन स्टडी ऑफ योर ग्रामर, ओके। टेलीग्राम पीडीएफ यू कैन डू सिनोनिम एंटोनिम और ग्रामर के जो क्वेश्चंस है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, वो टेलीग्राम पीडीएफ कर सकते हो। दोज हु आर एमएसपी स्टूडेंट, ब्लॉक वाइज स्ट्रेटजी एंड मॉक टेस्ट इज इनफ, ओके। टेलीग्राम पीडीएफ यू कैन जस्ट रेफर सिनोनिम एंटोनिम, जो ये कंटिन्यूसली करते रहना है। एग्जाम आपका रेलटेल का जो है वो 20 को है, तो 19 तक जो है टेलीग्राम पीडीएफ आपको फॉलो करना है, ठीक है। डोंट स्टॉप टेलीग्राम पीडीएफ, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, okay। And the last is GK. So from GK also you can expect 12 to 13 questions. तो इंग्लिश एंड जीके में कंबाइन ही आपको 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 25 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी रहेगा। तो जीके में अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो स्टैटिक पार्ट है जीके का वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ऑलरेडी एमएसपी में मैगजीन आपको दिए थे मैंने करंट अफेयर के, आई होप आपने एटलीस्ट प्रीवियस 3 मंथ के मैगजीन भी कर लिए होंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं किए तो अभी आप ज्वाइन करके मैगजीन जो है लास्ट 3 मंथ्स के एटलीस्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप कंप्लीट करो, ठीक है। नाउ मोर थिंग इज दैट कि सी करंट अफेयर का जो पोर्शन है इसमें थोड़ा कम रहेगा, 60-40 का रेशियो मान लो, 60% आपका स्टैटिक जीके रहेगा एंड 40% जो है वो करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर दूं मैं, तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, कंपलसरी टेलीग्राम पीडीएफ 19 फरवरी तक करते रहना है कंपलसरी, ठीक है, वो स्टॉप नहीं करना है। डेली टेबल आ रहा है, स्टैटिक जीके 1 लाइनर आ रहे हैं, करंट अफेयर्स यू आर गेटिंग, सो कंपलसरी डू दैट टिल 19 फरवरी, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग, जब भी आप मैगजीन अपना पढ़ने वाले हो अपना गवर्नमेंट जॉब का जो ऑलरेडी एमएसपी में है, ठीक है, सेपरेटली भी आप मैगजीन बॉक्स ले सकते हो, इट इज अवेलेबल ऑन अवर एप्लीकेशन इफ यू डोंट वांट टू जॉइन एमएसपी, 99 रुपीज़ फॉर 19 days इट इज, ओके। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें से अभी एग्जाम्पल अगर दूँ मैं, okay, so I just open the MSP, I will go to current affair magazines and here you can see that all the 3 months, last 3 months at least you can prepare, so just I will click on November month। अभी इसमें आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डेज है कंपलसरी करो, ये भी रेलटेल पूछ सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज आपको नवंबर, दिसंबर और लास्ट और जून तक आप जाओगे, सो फ्रॉम जून टू फरवरी यू कैन डू इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। अवार्ड्स कंपलसरी वो पूछेगा, दैट्स वाई यू कैन सी स्ट्रक्चराइज वे में सब दिया है इधर, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वे में आज, ओके। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल नहीं किया तो भी चलेगा, बट इंटरनेशनल में एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, इफ यू ओपन सपोज, ओके, हियर फर्स्ट करंट अफेयर इज देयर कि इराक साइन डील विद यूएई फर्म टू डेवलप ऑयल एंड गैस फील्ड, ठीक है। तो इराक के बारे में इंफॉर्मेशन लो, जैसे मैंने इधर बताया है, कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी। तो नाउ इन रेलटेल व्हाट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इराक, ठीक है। दे विल नॉट आस्क कि विथ वोम इराक साइन डील,
ओके मेन थिंग दे विल आस्क की बेसिक थिंग, सो दैट्स वाई करंट अफेयर के जो वेटेज वो कम है रेलटेल में, एंड स्टैटिक जीके, इसको स्टैटिक जीके बोलते हैं बिकॉज वो फिक्स्ड है, ठीक है। जो इराक का कैपिटल है वो बगदाद ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, राइट। सेम थिंग फॉर बांग्लादेश। सो मेन थिंग इज दैट एटलीस्ट जिसका भी न्यूज़ है, ओके लाइक हियर यू कैन सी सीजेस रिपब्लिक का न्यूज़ है, सो कैपिटल प्राइम मिनिस्टर करेंसी, ठीक है। एंड देन हियर इफ यू सी श्रीलंका का न्यूज़ है तो श्रीलंका का दिया है। मेन थिंग इज दैट आप ऐसा याद करने का ट्राई करो, ठीक है। सो एटलीस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल यू कैन डू लाइक दिस। देन बुक्स एंड ऑथर कंपलसरी विल डू, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स विल डू, साइंस एंड टेक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन विल देयर। ऑबिट्री यू कैन जस्ट पुट फॉर होल्ड और पुट फॉर ऑप्शन, नो नीड टू वरी फॉर दैट, ठीक है। miscellaneous event also you can do like that, ठीक है। So this is our magazine box which is most powerful, and if you prepare like this definitely you will get lots of questions from current affair. Obviously with this daily telegram pdf you will practice, obviously with this you will combine our mock test questions, whatever questions I am giving you in mock test from my side, definitely I am trying my best कि जो भी मैं क्वेश्चन दूँ वही उधर आपको आए, एटलीस्ट जो मतलब कंसेप्ट है उसका वो आए, ठीक है। ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रैक दिस करंट अफेयर, ठीक है, बट ट्राइंग फॉर माई साइड बेस्ट, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द मंथ है, सो दैट एटलीस्ट वन हेडर यू कैन जिस, ओके। नोबेल प्राइज, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस नोबेल प्राइज का आने वाला है, ठीक है। नोबेल प्राइज किसको मिला है तो ये नाम जो है आपको याद करने पड़ते हैं, तो दैट यू कैन मेंशन नाउ। इधर थोड़ा उनको लेवल बढ़ाना है, तो नोबेल प्राइज ये 2023 का है, तो प्रीवियस ईयर किसको मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो ये स्टैटिक जीके होता है, ओके। सो लाइक दिस यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक इन योर स्टैटिक जीके ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में सबसे अभी करंट अफेयर है, शुभम गिल बिकम फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 2000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री, लाइक। सो नाउ हियर व्हाट दे विल आस्क, शुभम गिल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, शुभम गिल जो है वो कौन से स्पोर्ट के लिए खेलता है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, आपका आंसर क्या होगा, क्रिकेट, राइट। तो ऐसे आपको पूछ सकता है, इस तरीके से प्रिपेयर करो। सो दैट्स वाई कि आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये जो हेडलाइन है इससे भी आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज, आई होप यू आर गॉटिंग लाइक दिस। ट्राई टू प्रिपेयर जीके प्रॉपरली फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अगर जीके में आपके आउट ऑफ दिस 12, 20, 13 क्वेश्चन 5 to 6 मार्क मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मिनिमम अगर मिल गए तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ओके। जस्ट रिमेंबर द गोल्डन स्टेटमेंट कि दिस रिक्रूटमेंट इज नॉट फॉर फ्रेशर्स बिकॉज ऑफ विच द कॉम्पिटिशन एंड कट ऑफ विल गो डेफिनेटली लो और लेस, ठीक है। तो इसका फायदा लो, एंड फॉर दिस रिक्रूटमेंट जस्ट प्रिपेयर हार्ड वॉट एवर डेज यू हैव। यू कैन जॉइन मॉक टेस्ट, ऑल द MSP links you will get in the comment section. For our existing MSP student, round wise strategy will be there on 14th of February in your RailTel folder. तो जो RailTel का फोल्डर दिखाया था उसमें मेंटर टॉक में आपका राउंड वाइज स्ट्रैटेजी, जो अपना फाइनल स्ट्रैटेजी होगा अबाउट RailTel, पेपर एग्जैक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें करना है क्या चीज़ नहीं, वो आने वाला है, वो आपको देखना है 14th of February को। So all the best everyone, just give your best, okay, and just focus on this 85% weightage of RailTel exam. इंटरव्यू के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर ऑल्सो इंटरव्यू वी हैव गेट परफॉर्मेंस, अपना IGP जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वो रहता ही है, तो उसमें आप टेंशन मत लो। जस्ट ये जो अभी CBT का मार्क्स है 85%, focus more on that. If you have any query, any doubt regarding this recruitment, regarding any recruitment, then you can comment down below. To get regular updates and all the strategies and preparation tips, you can join our Telegram channel. And Telegram PDF compulsory practice करना है 19 February को for all, ठीक है। All the best.